नमस्ते एंड जय जिनेंद्र। मैं आज इस विषय पे बात करने चाह रहा हूँ। उसके पहले मैं सब साध्वी जी और भगवंतों को और मुनिश्री लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं ये भी प्रणाम करना चाहता हूँ हमारे गुरु भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे ऊपर शुद्ध भवन के वैराग्य रति जी महाराज, जिनके साथ मैं निरंतर हमेशा इस रिसर्च में लगा हुआ हूँ। हर संडे हम लोग मिलते हैं 2 घंटे के लिए, और साहिब जी ने इतना नॉलेज इतना ट्रांसफर किया है कि मैं उनके लिए हमेशा आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। Anyways, so let's start with something unique and something new today, which I have brought for you guys, and this is the continuation of my research of last 10 years. तो 10 साल से जो मैंने रिसर्च करी और जो भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं पे काम किया, और उस अनंत ऊर्जा के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैंने जो काम किया वो है उसकी यंत्रों को ढूंढना, because sound was always there, Sotra was always there, but there was no geometry, there was no specific understanding of that yantra, and that is what I derived. And I'm very happy that since last 3 years or more than 3 years, a lot of people are using this. So today we are going to go to the another paradigm where I am trying to show you the extension of this research. So I'll be just sharing the screen with you guys and then continue with my presentation. If you need anything else in between, you can just raise your hand and talk to me. So, Namo Orientanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Vichanam, Namo Love Sapyasamanam. This is the basic Namokar mantra which we start everything. And this is what I have learned. First thing, and till today I can only remember this shloka because it has gone into my system. So, I am an architect and I have worked as an architecture प्रोफेशन एज अ बायो आर्किटेक्ट सिंस सो मेनी इयर्स, और मैंने 10 सालों पहले इस जैन शास्त्र में इस जैन की अद्भुत मिरेकुलस पावर को, जैन साइंस की मिरेकुलस पावर को जानने की कोशिश की, और वो इतना मेरे अंदर समा गया कि अभी मैं पूरा उसमें इमर्स हो चुका हूँ और डूब चुका हूँ। सीक्रेट ज्योमेट्री और भक्तांबर स्तोत्र मेरे लाइफ के पार्ट बन गए, और सीक्रेट ज्योमेट्री को मैंने बड़े लेवल पे स्टडी किया। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। सो भक्तांबर अनंत ऊर्जा and the sacred geometry of the Bhaktambar Sutra is what I have researched and what I have tried to derive, and you can also call it, I have invented those cards because those energy systems were not available, but with grace of Almighty and support of all the Gurujan and teachers, I could do this. What I'm trying to show you today is giving you the brief understanding of what we did in 48 Infinity Energy. 48 Infinity Energy, because it is the core of Bhaktambar Sutra, and I can understand that it is the core of Jainism, because infinity, the word which I have used, is not because I like the word infinity or because infinity is something which is beyond perception, but infinity has a lot of understanding with Jainism, और ये Jainism की अनंतता, अनादि अनंत, अनेकांतवाद में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और अनेकांतवाद में जब ये हमें बताया गया कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज perpetual, everything is there, and we are just trying to be part of the whole process. Jainism talks that universe was not created by God, it was always there, and we came into existence because of certain yonis and certain systems of atma and sharir, and there are different processes of energy which we called tejas or karmic energies, and which made us. But Jainism, instead of including the process of how did we come into existence, it also talked about that what are the different processes which we need to follow when we are living in this universe. So Jainism, in fact, is not a science, it's not a religion, it's not a philosophy, it is just a demonstration, it is just a information which our forefathers, in fact 2400 तीर्थंकरों ने जो हमें बताया, जो उन्होंने देखा वो बताया, उनकी दृष्टि, which we call सम्यक दृष्टि, what they see they have told us, and when they told us what they could realize from the anant environment, anant space, infinite universal systems which they could understand. They started telling us what they saw.
And they were scientists, they were extraordinary people, they were totally aligned, they had amazing energy, so they could see beyond what we can see. They could see something which was इंटेंजिबल विच वॉज एनर्जी। और अनंत ऊर्जा को इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि भगवंत ने, हमारे फिलोसोफर्स ने, टीचर्स ने वो अनंत ऊर्जा को देख पाए, और उस अनंत ऊर्जा को जब देख पाए, समझ पाए, तो उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के दो सिद्धांत हैं, एक तो जानना और दूसरा देखना। जानना मानना नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू ओनली हियर एंड रेसिप्रोकेट इट। आपके भगवंत, आपके मुनि, आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रवचन देते हैं, हम उनको सुनते हैं, बट उनको मानते नहीं है, हम उनको जानना चाहते हैं। एंड जैनिज्म मेड अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू सी यू कैन एक्चुअली realize, understand, take it inside you. It is not only observation, it is not drishti, it is also to take it inside you. That is called awareness. और जैनिज्म ने अवेयरनेस की बात की, जैनिज्म ने ये बात की कि सारी दुनियाओं में सब कुछ, सब चीजें एक साथ चल रही है, और अनेकांतवाद ये कहता है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। So if you take care of yourself, you are taking care of the whole world. So be selfish, take care of yourself. अपना ध्यान रखें, और अगर अपना ध्यान रखेंगे तो दुनिया का आप ऑटोमेटिक ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि दुनिया आप खुद है। ओके, आत्मा की बात की, क्वांटम फिजिक्स की बात की, वो एग्जिस्टेंस, इंटेंगलमेंट्स, इतनी साइंटिफिक रेलम की जैनिज्म में बात की कि जिसका आज मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो पूरी रात लग जाएगी। बट लेट्स गो अहेड, व्हाट इज जैनिज्म और उसका मूल तत्व क्या है, और इस सिद्धांत को मैं समझाना चाहता हूँ। ओके, और इस सिद्धांत में और इस सिस्टम में इन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग 6 स्पेसिफिक षड्द्रव्य कहते हैं इनको, षड्द्रव्य इन्होंने सिस्टम दिए। फर्स्ट एंड मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इज हु आर यू, यू आर अ मैटर, पुद्गल। पुद मींस फोन करता हूं, एंड गल मींस गल जाएंगे आप, हट जाएंगे, मर जाएंगे। एनीथिंग व्हिच इज जड़, which doesn't have any आत्मा और चेतना इस पुद्गल। तो दुनिया में पुद्गल क्या है? उस पुद्गल को स्पेस कौन देता है, रखता किधर है? वो स्पेस है, आकाश है। और उस आकाश की हम बात करेंगे तो उसमें ईथर है। ईथर इज द मीडियम। जिस पुद्गल में चलने की शक्ति है, जिस द्रव्य में मूवमेंट की शक्ति है, उसको मीडियम की जरूरत है, और धर्मस्थिकाय मीडियम देता है ईथर। और उस ईथर के साथ जब मूवमेंट हो रहा है तो उसको रेस्ट भी करना है, उसको विश्राम करना है, उसको रुक जाना है, क्योंकि बिना रुके दुनिया में कोई भी जीव और कोई भी पुद्गल उस स्थिरता में नहीं आ सकता। और विदाउट स्टॉपेज नथिंग इज गोइंग टू एग्जिस्ट। दैट इज ग्रेविटी, दैट इज वेयर यू रेस्ट योरसेल्फ, स्टार्ट थिंकिंग। अपने विचारों को आप रेस्ट कर लेते हैं, सोचते हैं। अदरवाइज धर्मस्थिका इतर का प्रोशेप और ये मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूवमेंट इज गोइंग टू लेट यू थिंक 24/7, बट अधर्मस्थिका आपको रोक देता है कि नहीं, सोचो समझो। एंड दिस इज सच अ वंडरफुल सिस्टम दे हैव गिवन, एंड ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग इन अ टाइमलाइन, in a frame of time where there are two different time they have talked about. One is called Vyavhar time and another is called, so the natural time. So हम ये बात करना चाहते हैं कि जो टाइम उन्होंने बताया है, एक तो टाइम बताया है कि सन एंड मून का, और दूसरा टाइम बताया है हमारा निश्चय काल कहते हैं उसको, व्यवहार और निश्चय। निश्चय इज द ग्रोथ, हाउ यू ग्रो। सो फ्रॉम स्मॉल टू बिग you are growing, and that is the time. So this time we need to understand that the detail have gone so much into it, and then it talks about all these things is working on a certain aspect of Pudgal and Jeev and Jeevastikaya. Jeev is the conscious body which has chetana, which has life, which can think, which has emotions. और इन 6 सिद्धांतों को हमने यूज किया है क्योंकि ये 6 तत्व अक्षय, अविनाशी, अमर, अनंत और सतत बदलने वाले हैं, और इन 6 तत्वों से ही, द्रव्यों से ही ब्रह्मांड बना है, universe, and we exist because of these 6 elements. And this is what Jainism has told. And if you want to do something, if you want to study Jainism in detail, just study these 6. You will take 6 years to 60 years to understand these 6 siddhant only, because so much of detailing has been given. The whole universe has been formed up according to this 6 system, and then the science has also given us the law and systems of how universe is made, lok or alok. I'm not going to go into that detail, but this is something which I have utilized. I have studied in length, in detail since last 10 years, and I am trying to find out instant things and products which we can use in day-to-day life following these systems.
सो हमें हमें इन सब सिद्धांतों से कुछ निकालना है, और इस सिद्धांत से जो हमने निकाला है वो डे टू डे लाइफ में यूज होना चाहिए, और उस पर मैंने काम किया। और जब उस पर मैंने ये काम किया तो ये पाया कि भाव, द्रव्य, काल और क्षेत्र, emotions, matter, time and space is also very important aspect which resonate, which creates अनुनाद। अनुनाद जब होता है, रेजोनेंस होता है इन सब चीजों में, तो ये चार तत्वों में बढ़ जाते हैं। एंड जैन, not only Jains, the whole world consider these four main attributes which makes us come into this system। और उसके साथ जब साउंड वाइब्रेशन इंटरैक्ट होता है तो साउंड एक क्रिएट करता है रेजोनेंस पैटर्न। सो भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा में जब मैंने ये देखा और ये पाया कि साउंड वाइब्रेशन रेजोनेंस क्रिएट करके पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो ये पैटर्न क्या है, और ये पैटर्न ही हमारा एग्जिस्टेंस है। हम इस पैटर्न का पार्ट है, और ये पैटर्न लूप में है। ये साउंड वाइब्रेशन जब आती है तो व्हेन द साउंड गोज इनटू योर ईयर, यू स्टार्ट गेटिंग पैटर्न्स इनसाइड योर सिस्टम एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोस पैटर्न, एंड दोस संवेदना, ब्रह्मांडिक संवेदना, द इमोशनल relationship which you connect with the sound, because that sensory nerve creates a very strong alignment of your chakras। हम उस लूप में घूम जाते हैं और रहते रहते हैं। और ये लूप क्या है? ये लूप इंफिनिटी है। 48 सूत्रों की इंफिनिटी की जब हम बात करते हैं, अनंत ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये है कि ये लूप घूम रहा है। And sound and resonance creates a pattern, and infinite space hold it to give us the universal consciousness, which then converts this into energy। हम इसका भाग हैं, we are part of this infinity, and that is what I wanted to tell you। That is what is the core of my research। And then when we talk about sound vibration, Jainism, Jains have understood, the Tirthankaras, the people of the Vedic time, let's not call them Jain, everybody who exists at those timeline understood that there is infinity, and Bhaktambar Sutra has talked about infinity in time, space, matter and emotion। So these 48 sutras are the loop। These 48 sutras have a miraculous power to help people। We don't call it a healing frequency, or we don't call it something as a medicine or something which will take care of your health, but it is something which has a magic, which has miracle, which aligns your chakras। And when your chakras are aligned, when you know what is happening, that's the time जब आप पता कर पाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये भक्तांबर सूत्र की 48 अनंत ऊर्जाओं के रूप में जो ये आपको पैटर्न की बात करी है, जो रचना प्रदर्शनात्मक रीति से जो हमें बताई गई है, वो रचना है क्या? वो रचना सेक्रेड ज्योमेट्री है। और ये सेक्रेड ज्योमेट्री की मैं बात करने जा रहा हूं। तो साउंड वाइब्रेशन ने जब पैटर्न्स क्रिएट किए, और वो पैटर्न भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाओं से, अनंत वाइब्रेशन से एक एक साउंड, एक एक शब्द, हर 48 सूत्र के शब्दों में हर शब्द को 80 तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। वसंतलिका छंद में जब हमने उस सूत्र को सुना, गाया नहीं, सुना तो हमारे शब्द अंदर एक पैटर्न तैयार हुआ। और वो पैटर्न जब तैयार होगा, जब आप उसको ढंग से सुनेंगे, उस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, उस टाइम, स्पेस और इमोशंस में जाएंगे, और वो भक्ति से सुनेंगे। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए सुनना जरूरी है। और उसी प्रोसेस को मैंने काम किया। जब भक्तांबर सूत्र की साउंड वाइब्रेशन को मैंने पकड़ा, तो ये पाया कि वो फ्रीक्वेंसी जो मानतुंगाचार्य ने हजारों साल पहले राजा भोज के दरबार में वो 48 ताले खोलते समय, when he was in the prison and he broke all 48 locks by just uttering and giving stuti to Adinath Bhagwan, and while praying and concentrating and speaking those amazing words in a particular frequency, he could break the locks. The locks could break because of infrasound. Infrasound can only be heard by some people. We don't have that frequency to hear it. But Mantungasharya ne wo sound vibration emit kiya aur ताले टूटे. And that is what we are trying to understand. We need those frequencies. We don't need the शब्द। शब्द जब निकलता है तो वो झूठ हो जाता है। हमें बोलना नहीं है, हमें सुनना है। जब हम चुप रहेंगे तो परमात्मा बोलेगा। This is the basis of what I am talking about। Anyways, so I have given you the basic gist of what is Jainism, and how Jains and how people who have understood this science have utilized the power of energies, and that energies are where they are sacred geometries। These geometries, these patterns are there in nature।
ब्रह्मांड और पर्यावरण की रूपरेखा को पवित्र ज्यामिति कहते हैं। द शेप ऑफ नेचर आर नोन एज द सीक्रेट ज्योमेट्री एंड दिस इज देयर, इट इज एवरीवेयर। जब दृष्टि आपकी होगी, वो सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्र से आप जब उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये सीक्रेट ज्योमेट्री सब जगह दिखेगी, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज पवित्र एंड एवरीथिंग इज सीक्रेट। और इस सीक्रेट ज्योमेट्री का पर्पस क्या है? ये मैथमेटिक्स है, ये एक फिजिक्स है, ये एक साइंस है। इस साइंस को हम लोगों ने हजारों साल पहले समझा, उसके शब्द बनाए, उस ज्योमेट्री से पैटर्न तैयार किए और पैटर्न से यंत्र तैयार किए और यंत्र को मंत्रों से रिलेट किया। दैट वाज अमेजिंग एंड दिस इज व्हाट फॉर्म फंक्शन एंड मीनिंग टॉक्स अबाउट एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ बैलेंस। भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा की अद्भुत ज्यामिति को अगर आप समझ पाएंगे तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और ये ज्यामिति ही मंत्रों का एक पार्ट है, क्योंकि मंत्र यंत्र के बिना अधूरा है और यंत्र मंत्र के बिना अधूरा है। एंड आपने कभी देखा है, डू यू हैव एवर नोटिस द पैटर्न्स इन द नेचर? एवरीथिंग इज सिग्निफिकेंट। एंड ये पैटर्न्स और ये ज्योमेट्री को हमारे मिस्टिक्स, सेजेस, स्पिरिचुअल टीचर्स ने समझा है। क्यों हम ना समझें? हम आज उस लेवल पे आके क्यों ना समझने की कोशिश करें? क्यों हम चीजों को मानते रहते हैं, हम जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो हमें जानना है, वी हैव टू स्टार्ट बिकमिंग ऑब्जर्वेंट, वी हैव टू स्टार्ट becoming aware, and when you become an aware, you will start finding the truth. You will not only believe in the truth or listen to the truth, you need to find it, you need to become a researcher. आपको इस प्रोसेस में एक साधक बनना है, आपको ढूंढना है, आपको खोजना है, और जब आप खोज पे निकलोगे तब आप उसको जान पाओगे। In its simplest definition, sacred geometry is the meaning and symbolism that is attributed to certain shapes and proportions on a deeper and more spiritual level. And according to many ancient traditions, all life arises from sacred geometry. पूरा ब्रह्मांड sacred geometry से ही बना है, और ये sacred geometry को भक्तांबर सूत्र ने इतनी अद्भुत तरीके से समझा है और उससे हमें पैटर्न तैयार किए हैं, जिसका हमें आज तक हीलिंग मिलता है। ये एक अद्भुत है, ये एक अद्भुत साइंस है। और इस साइंस को हमें समझने के लिए we need to become a sacred geometry, because we are geometry, we are a shape, we are a pattern, we are शिल्प। हम वास्तु शिल्प शास्त्र की बात करते हैं तो वास्तु स्पेस है, शिल्प आपका शरीर है जो कि एक पैटर्न है, और शास्त्र साइंस है। तो ये शिल्प है, ये ज्योमेट्री है। एवरीथिंग यू आर, यू डू, यू क्रिएट, यू इंजेस्ट, यू इंटरैक्ट विथ इज इंस्पायर्ड बाय सीक्रेट ज्योमेट्री। तो ये पवित्र ज्यामिति सब जगह है। हम हर चीज में पवित्र ज्यामिति ढूंढें और उस वाइब्रेशन को अपने बॉडी के रेजोनेंस से क्रिएट करें, तो आप ये पाएंगे कि आपको वो अद्भुत सीक्रेट ज्योमेट्री के पैटर्न आपके शरीर के साथ यंत्रों और मंत्रों के साथ तंत्र क्रिएट करते हैं, और वो आपकी सॉल्यूशन है। एंड पैटर्न और मैटर, दो पैटर्न शरीर में है और हम एक मैटर है, हम एक पुद्गल है, हम एक मटेरियल है। उस मटेरियल में जब भगवान पैटर्न डाल देता है तो मूवमेंट हो जाता है, और जब मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और एक प्राण क्रिएट होते हैं। प्राण इज मूवमेंट, प्राणा इज मूवमेंट, जीव इज मूवमेंट, पुद्गल डजंट हैव चेतना, चेतना इज मूवमेंट। आप हिलेंगे, आप चलेंगे, आप वाइब्रेशन लेंगे, आपकी शरीर वाइब्रेशन करेगी, क्योंकि आप में चेतना है, यू आर कॉन्शियस बीइंग। एंड अ कॉन्शियस बीइंग is not Pudgal, he is a Jeev, he is an Atma, he is a soul which has energy, and that is what you. So, pattern has an impact on matter, and matter has an impact on matter, and that is what sacred geometry is. And this is there inside your body, everywhere. Everywhere there is a geometry, there is a golden proportion, there is a system. We need to understand and decode it. मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि इतने डिटेल में जाएं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको फिलोसोफर बनना पड़ेगा, लेकिन इस ज्योमेट्री को अगर हम फील कर सकें और बाहर की दुनिया की सोर्सेज और सराउंडिंग एनवायरनमेंट और वाइब्रेशन और ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं के साथ रेजोनेंस हमारी पैटर्न का करें, तो आप ये पाएंगे कि आपके चक्रास अलाइंड हो गए हैं और यू आर इन अ स्टेट ऑफ divinity, you are in a state of solace, you are in a nirvana, you can go to the moksha, you can find the path। और वो अवेयरनेस और वो पाथ और वो रास्ता और वो फोकस और वो कॉन्शियसनेस आपको जब मिल पाएगा, जब आपकी चेतना रेजोनेट होगी सराउंडिंग चेतनाओं से। और ये हम रंगोली में देखते हैं, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, एवरी डे वी मेक अ सेक्रेट ज्योमेट्री आउटसाइड आवर होम, एवरी फेस्टिवल देयर इज अ सेक्रेट ज्योमेट्री। व्हाट इज दिस? व्हाई वी डू दिस?
We have never tried. This is a yantra which is generating a mantra. अब ये यंत्र को आप सुनेंगे, आपके पास साउंड सुनने की शक्ति नहीं है, बट ये यंत्र, ये जो रंगोली का यंत्र बनाया है एक हाउसवाइफ ने घर के आंगन में, उस यंत्र में मंत्र हैं जो आप सुन नहीं सकते, बट मंत्र एमिट हो रहे हैं, और वो मंत्र ही प्योरिटी ला रहे हैं, क्योंकि यंत्र मंत्र के बिना अधूरा है. And that is where I started working on. And इस वर्क में जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये पाया कि there is a direct relationship with Judaism. Now what is Judaism? Why I am trying to go into Judaism? I am not trying to go into Judaism. I am not trying to reinvent the wheel. When I was doing research on international system, then I was trying to understand कि ये जैनिज्म की सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ 48 नंबर का क्या रिलेशन है. तो मैंने ये पाया कि जूडिज्म में, हिब्रू में, कबाला साइंस में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं. एंड ट्री ऑफ लाइफ का रिलेशनशिप शरीर से है, चक्रा से है, इट कैरेक्टराइज्ड मंडला से भी है. इन सब चीजों को जब मैंने जोड़ा तो मैंने ये पाया इसके द्वारा ट्री ऑफ लाइफ एंड जूडिज्म कैन be understood as a process, as a science to go into the deep understanding of human psychology. और इसलिए मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की. इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप हमारी किताब में पढ़ सकते हैं. बट दिस इज व्हाट माय रिलेशनशिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सीक्रेट ज्योमेट्री. सीक्रेट ज्योमेट्री को मैंने छोटा कर दिया. ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं में इतने सारे पैटर्न हैं, मैंने ट्री ऑफ लाइफ के पैटर्न के साथ काम करना शुरू किया, और उसके साथ भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाओं की जो मंत्र हैं, जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, उस साउंड वाइब्रेशन की ज्योमेट्री जो पैदा होती है, उस पे काम करना शुरू किया. एंड दैट्स देन आई कुड अंडरस्टैंड that there is a direct connection, there is the understanding of spiritual connection between our acharyas and Kabbalis, because those days everybody were working together. There was a amazing communication system between the universe as one, so we were all one. Okay, we have given different names, Jainism, Judaism, but we are all human, and we all have mind which can think. Okay, along with that, when I was studying this, I have already told you, हम भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाओं को बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, बसंतली का छंद में वो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट ही नहीं कर सकते, और इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं कि हम शब्द खा जाते हैं. So we don't know how to speak those 48 sutras. Somebody has told us and we start reciting it. People are singing songs, people are doing 48 Bhaktambar Sutra in 20 minutes. How it's possible? हम माला पढ़ लेते कट 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 कट, नहीं हो रहा उससे कुछ. We need to understand the healing frequencies of Bhaktambar Sutra, और वो मैंने पता की 10 साल के रिसर्च में कि सोलफुग्यू फ्रीक्वेंसी और कुछ साइमेटिक्स की वाइब्रेशंस हैं, उनकी वाइब्रेशंस को अगर जोड़ के मैं एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ साउंड का, वो भक्तांबर सूत्र के हर मंत्रों को रिलेट करता है. तो मुझे मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है. अब मैं सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी सुन लूं तो मुझे भक्तांबर का प्रोसेस का ज्ञान आ जाएगा, और उसकी हीलिंग मिरेकुलस पावर मिल जाएगी. और 48 ताले मेरे बंद नहीं है. मानतुंगाचार्य को 48 सालों में बंद करा था राजा भोज ने किसी कारण से. आपके 48 ताले बंद नहीं है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, आपको 1 2 3 प्रॉब्लम है, वही ताले खोलिए, वही सूत्र सुनिए, वही सूत्र की रिलेशनशिप और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपको वो रिलेशनशिप, और वो सुनेंगे. सुनने के साथ, जैसे मैंने आपको कहा, आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, जो कि बोल नहीं रहे ना, वो एक अंडरस्टैंडेबल राइट ज्योमेट्री है जो हमने डिराइव की. ओके, तो कार्ड आपके साथ हैं, साउंड वाइब्रेशन आप सुन रहे हैं, और भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जा में आप डूब रहे हैं. दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 10 years, एंड नाउ द होल प्रोसेस हैज चेंज्ड. नाउ आई हैव गॉन इनटू समथिंग एल्स. I have tried to transform myself, एक रूपांतर करने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं इस पे रिसर्च करके कम से कम 200 से 1000 लोगों को हमने एनर्जी कार्ड दिए हैं. ये एनर्जी कार्ड्स हम लोगों ने सबको दिए. ये एनर्जी कार्ड लोगों ने अपने हाथों में रखे, उसकी वाइब्रेशन को सुना, हमने साउंड वाइब्रेशंस भी भेजे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ कमी थी. वो रिसर्च बहुत आगे तक पहुंच गई, 75-80% तक हमें रिजल्ट आए, but I wanted to go to 100%. And then I thought something is missing, and then I started working on fragrance. Because जब हम पंच इंद्रियों की बात करते हैं, 5 senses की बात करते हैं, तो we talk about first and foremost इंद्री is the touch sense. तो आप जब ये भक्तांबर एनर्जी कार्ड को हाथ में पकड़ते हैं तो आप टच कर रहे हैं, you are already touching it.
Okay, so touch vibration we have already taken care of in these cards, where we have different textures and different wood, and this wood is a different wood. लकड़ी की एनर्जी, ज्योमेट्री की एनर्जी, इसमें जो हमने डिफरेंट पैटर्न्स को टेक्सचर दिए, उसकी एनर्जी को आप जब टच करते हैं तो आपको अद्भुत फील होता है. तो टच वी हैव टेकन केयर ऑफ. Touch is a part of the taste where we consider touch and taste as one. Touch and taste has been taken care of. Sound is what you listen. Okay, and then when you see this card, you are visualizing the sacred geometry in your eyes. मैं सबको कहता हूँ ध्यान करते समय सबसे पहले इसको 2 मिनट तक देखें, ये ज्योमेट्री को अपने अंदर लें, फिर आंख बंद करें टच करें, क्योंकि वो ज्योमेट्री आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए. So you are looking. Now we have taken care of 4 senses: touch, taste, hearing, and looking, seeing. We couldn't get into the smell test. And smell is one of the biggest system of our brain where we can identify the fragrance. और ये फ्रेग्रेंस के साइंस में मैं उतरा, तो मैं आपको फ्रेग्रेंस के साइंस में मैंने क्या किया उसका एक छोटा सा विश्लेषण देना चाहता हूं. This is a basis, brief description of what I did, because there are a lot of things I did in last couple of years on sound, on fragrance, which we can talk it in later stage. Today is the introduction. Today I am trying to, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 48 अनंत ऊर्जाओं के जो घ्राण हैं जो हम नाक से अंदर लेते हैं, जो हम समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है. And this is the science of fragrance. The influence of fragrance such as perfume and room freshener on the psychophysiological activities of human has been known for a long time. A fragrance consists of volatile chemical with a molecular weight of less than 300 Da that human perceives through their olfactory system. Olfactory system क्या है? हमारे नाक के अंदर से जब हम सांस लेते हैं तो वो कण, वो छोटे छोटे परमाणु एक कंपन पैदा करते हैं. वो कंपन जब पैदा होती है तो हमारा नाक उस कंपन को अंडरस्टैंड करता है, और वो अलग अलग प्रोसेसेस से हमारे मूड, हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारे स्ट्रेस, हमारी दूसरी चीजों, हजारों साल के वैदिक प्रिंसिपल में साइंस को हमने समझा, और इस साइंस को जब हमने समझा था तो ये पाया था कि ये ऑल्फैक्टरी प्रोसेस से होता क्या है. ये हमारे नर्व में, हमारे एक पर्टिकुलर सिस्टम है न्यूरॉन का, उस पे जाके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को अटैच हो जाती है वो परमाणु, वो पुद्गल, वो जो पुद्गल है, जो सेंट है, जो एक स्मेल है, जो कि एक खुशबू है, वो जो एसेंशियल ऑयल से निकलती है, जो हम सूंघ रहे हैं, हम घ्राण कर रहे हैं, वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में जाके सीलिया में जाके अटैच हो जाती है. और जब वो अटैच हो जाती है, वो एक्टिवेट होती है पर्टिकुलर प्रोटीन से, और जब प्रोटीन से वो एक्टिवेट हो जाती है अंदर नाक के, तो वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट. वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे ब्रेन में जाके इंफॉर्मेशन देती है. नाउ ब्रेन है स्टार्टेड वर्किंग, और ये ब्रेन जब काम करना शुरू करता है तो वो थॉट, इमोशंस और मेमोरी में उसको समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है. और ये हमने पाया है ईईजी के थ्रू, ब्रेन एक्टिविटीज एंड कॉग्निटिव फंक्शन से, इलेक्ट्रो एन्फ्रोलॉजी से, ईईजी से आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस तरह को ब्रेन में जाके साउंड वाइब्रेशन के साथ, टच के साथ, जब स्मेल अंदर जाती है तो ब्रेन के कौन से पार्ट को एक्टिवेट करके हमारा कौन सा स्ट्रेस, हमारे कौन से चक्रास को अलाइन करती है, ये हमने स्टडी किया. और उसके बाद ये 48 अनंत ऊर्जा के फ्रेग्रेंस बनाए. मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ. स्पिरिचुअलिटी के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है. ये हम आज ईईजी के थ्रू, मशीनों के थ्रू टेस्ट कर पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर पा रहे हैं. बट हमारे परदादाओं ने, हमारे तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने, आचार्यों ने इसको कभी भी टेस्ट करने की समझ नहीं, क्योंकि उनको मालूम पड़ने लगा कि जैसे ही ये स्मेल अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ये मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है. दिस इज व्हाट हैपेंस. द कंफर्ट ऑफ हार्ट, द ग्लैडिंग ऑफ स्पिरिट, रिजॉइसिंग ऑफ सेंसेस, experiencing of spiritual healing, liberation of egoic trapping. In the momentary experience of nirvana, perfect wholeness of highest spiritual state is attained when you are starting smelling. और ये स्मेल एक एक्सिलरेशन ऑफ सेंसेस है, और ये फ्रेग्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट. इसको मैंने रिसर्च के बाद, क्योंकि इसमें टाइम लगा, इसमें एसेंशियल ऑयल का इन्वॉल्वमेंट था, और बड़े तरह तरह के प्योरिटी वाले एसेंशियल ऑयल मिले, इसको हमने कंपाउंडिंग की, मिलाया, और उसके बाद इस प्रोसेस में आया. और ये प्रोसेस जब आया तो आप ये फिगर देख रहे हैं कि हमने ध्यान किया साउंड, साइट, स्मेल के और टच के साथ.
और ये जब हमने टच के साथ भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं को सुना, एंड द टाइम व्हेन वी व्हेन वी सेट in a state of mind, facing a specific direction, hearing a specific solfeggio and cymatic frequencies, and smelling a specific scent, which is a fragrance, we saw that we have reached that state of nirvana or state where we could align our chakras very well. और ये चक्रा अलाइनमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हमने पहले साउंड और एनर्जी कार्ड्स को, टच को इग्नाइट किया. अब हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हमारे शरीर का स्मेल को अंडरस्टैंड किया और उसके आपके लिए मैं लेके आया हूं आज. लेकिन ये होता क्या है? जेन एट्रीब्यूट्स को हमने समझने की कोशिश की. द्रव्य अपने आप में एक फ्रेग्रेंट मॉलिक्यूल है. वो एक पर्टिकुलर टाइम में आप इनहेल करते हैं. वो जब इनहेल करते हैं तो आपके भाव, आपके शरीर के अंदर की कंपन, आपकी इमोशंस एक्साइट हो जाती है. और वो जब इमोशन एक्साइट होती है तो वो क्षेत्र में, उस एनवायरनमेंट में आप अपने आप एक अद्भुत वाइब्रेशन पैदा करते हैं. वो क्षेत्र है द्रव्य काल भाव क्षेत्र. अनंत ऊर्जाओं के ग्रहण भक्तांबर के किस तरह से अटैच करते हैं, मैंने आपको ब्रीफ बताया, इसकी डिटेलिंग हमने की है. और उसके साथ साथ ये तत्वों को भी स्ट्रेंथ करता है. सो ये फ्रेगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या है? ये पुद्गल है, ये पुद्गल अस्तिकाय है. इसको मूवमेंट मिलता है इथर में धर्मस्तिकाय से. धर्मस्तिकाय से जब इसको मूवमेंट मिलके वो नाक में चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो बाहर पड़े हुए हैं एनवायरनमेंट में. आपके घर में, आपके ऑफिस में आपने एसेंशियल ऑयल को रखा, उस एसेंशियल ऑयल को आप इग्नाइट करते हैं, उसको एक डिफ्यूजर में डाल के 2-3 ड्रॉप उसमें आग लगाते हैं या अग्नि देते हैं, हीट करते हैं बल्ब से, तो वो निकलने शुरू होती है. धर्मस्तिकाय उस मूवमेंट में एक्शन देता है, क्योंकि वो नाउ इट इज अ मूविंग पार्ट, अ पुद्गल विद अ मूवमेंट, विद एनर्जी ऑफ मूविंग. धर्मस्तिकाय उसको धक्का देता है और वो आपके नाक की तरफ आती है, क्योंकि आप अब इनहेल कर रहे हैं, आप सांस खींच रहे हैं. जैसे कि आपकी सांस खींची तो आपके नाक के पास गई और वो धर्मस्तिकाय मूविंग मॉलिक्यूल सीलिया में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में जाके अटैच हो जाता है, रुक जाता है. वहां धर्मस्तिकाय काम आता है. उसने उसको रोक दिया. रोकना जरूरी है, क्योंकि बिना रुके वो पुद्गल घूमता रहेगा नाक में, शरीर के अंदर चला जाएगा. कहाँ जाएगा भगवानी मालिक? या आप स्नीज कर देंगे, आप छींक देंगे, बाहर निकाल देंगे. वो वहां रोक देता है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके. धर्मस्तिकाय का फंक्शन वहां शुरू होता है. और जैसे ही वो रुक जाता है, वो स्पेस जहां पे वो रुका है वो आकाश अस्तिकाय है. दैट इज द स्पेस, दैट इज द ब्रह्मांड, दैट इज द यूनिवर्स फॉर दैट तत्व. और उस तत्व का जो यूनिवर्स है, उस तत्व के आकाश अस्तिकाय में वो रुक जाता है. वहां उस समय, उस टाइम पे प्रोटीन्स आके उसको एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फंक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है. और उसमें एक उस काल में उस इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन को मिलने के बाद वो कण में जीव आ जाता है. वो जो कण है फ्रेग्रेंट मॉलिक्यूल का, वो जीव होके शरीर में जाता है. हमारा ब्रेन उसको समझता है और वो जीव का पैटर्न, वो सेक्रेट ज्योमेट्री का पैटर्न जिस तरह से था, उस तरह से ये तत्व का पैटर्न, ये फ्रेग्रेंट मॉलिक्यूल का पैटर्न हमारा ब्रेन डिकोड करना शुरू कर देता है. और वो डिकोड करने के बाद आपके एक पर्टिकुलर एनर्जी सेंसरी ऑर्गन से दूसरे सेंसरी ऑर्गन में इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है और आप उसको समझने लगते हैं. This is the core science of how sound, along with touch and taste and vision, is incomplete without the smell. आप ये देखेंगे इस डायग्राम में, smell occupies such a big part of your brain, and that is where भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं में 48 अनंत कार्ड के साथ, ज्योमेट्री के साथ आपको अब स्मेल की भी जरूरत है. उसको करना, उसको सूंघना, उसको समझना हमें जरूरी है. प्रोसेस सेम है, मैं आपको बताने वाला हूं, बट I just wanted to give you the basis of understanding of this particular science, and I am sure you understood what I am trying to say. ये particular process है कि how each sensory organ, and then sight, touch and heard की हमने बात की. और उसके बाद जब हम सेंस और स्मेल की बात करते हैं तो ये एक अद्भुत वाइब्रेशन लेके आता है, हमारे चक्रास को अलाइन करता है, हमारे कोर में, हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी में, हमारे चित्त, बुद्धि, मन के थ्रू हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, जिसको हम काय मध्य सूत्रम कहते हैं. एक सेंस, ये गंध, ये स्मेल भी अपने आप में एक सिस्टम है. काय मध्य सूत्रम, हमारे मध्य, काय के मध्य को सूत्र माना है.
और ये आपके एनवायरनमेंट में आपके वास्तु के ब्रह्म स्थान को भी इग्नाइट करती है, क्योंकि ब्रह्म स्थान हैज द सेंस ऑफ स्मेल। फ्रॉम हेयर द बॉडी ब्रीथ्स, द हाउस ब्रीथ योर नाभि। नाभि जो आपकी है, वहां से ये गंध आपके शरीर में जाती है जब आपका ऑलिफैक्टरी फंक्शन काम नहीं करता है। जब ऑलिफैक्टरी सेंसर काम कर रहा है तो आप नाक से अंदर, and that is what I have already told you. Then we have worked on the stages of perception. This is one of my core science when I am working on brain and understanding the brain function. मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है और स्ट्रेसेस कैसे आते हैं, क्योंकि शरीर में जितने भी दुख हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं का हमारे इंद्रियों के साथ कनेक्शन है, उन सब इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का मास्टर कौन है? आपका माइंड, आपका मन, आपकी चित्त, आपकी बुद्धि। और ये बुद्धि आपकी आत्मा है। आत्मा को जब शरीर ढूंढना है तो सबसे पहले उसने बुद्धि को बनाया, बुद्धि के साथ ही शरीर ढूंढा, क्योंकि वो तेजस और कार्मिक शरीर जब आया उस योनि में, उसने सबसे पहले प्री कोडेड इंफॉर्मेशन को एनर्जी देके एक बुद्धि बनाई, और मन की जगह ढूंढने के लिए उस योनि में वो आत्मा ने शरीर ढूंढा और आप इस दुनिया में आए। एब्सोल्यूट रियलिटी जब भी टोटल एक्सटर्नल वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन, ये स्टेज ऑफ परसेप्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा साइंटिफिक है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा 2 मिनट की और आगे बढ़ूंगा, बट बताना जरूरी है क्योंकि इस पे मैंने काम किया है। मैं समझाना चाहता हूँ और आप लोगों की एडवाइस लेना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें और कुछ करने की जरूरत है। आज हमारे बीच बड़े बड़े विद्वान, विदुषी और आचार्य श्री और भगवंत हैं, जिनसे मैं बाद में चर्चा करूंगा। बट मैंने परसेप्शन की जब बात की, जब एब्सोल्यूट रियलिटी और परसीव रियलिटी की बात की, इसको हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा मुश्किल है, बट एब्सोल्यूट रियलिटी गेट्स ट्रिगर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ टोटल एक्सटर्नल वाइब्रेशन। जितनी भी बाहर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, न कि सिर्फ साउंड से, आंखों से, टच से, जो स्मेल से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ब्रह्मांडिक ऊर्जाएं, जो भौगोलिक ऊर्जाएं, जो वैश्विक ऊर्जाएं हमारे शरीर में जा रही है, कॉस्मिक, ग्लोबल, टेल्यूरिक, वो सब एब्सोल्यूट रियलिटी पे एक चीज को, एक इंफॉर्मेशन को हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ बढ़ाती है, विच इज ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारे पांचों इंद्रियां उसको परसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, पांचों इंद्रियों ने अभी ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो इंफॉर्मेशन को ले ली। उस ऑब्जेक्टिव लेवल पे जब इंफॉर्मेशन को ली तो उसकी, वो चित्त ने, वो हमारे सेंसेस ने, जिसमें भी चित्त है, वो इंद्रियों ने उसको क्वालिटेटिव लेवल पे नर्व के कोड से, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है या नर्व्स है। अब नर्व्स ने जब, जैसे ही वो मैंने आपको टच किया, ये हाथ रखा, तो ये नर्व पे गया, नर्व ने वो इंफॉर्मेशन को डिकोड किया, सेंस ऑर्गन ने उस इंफॉर्मेशन को लिया, नर्व ने डिकोड किया क्वालिटी के हिसाब से। उस क्वालिटेटिव स्मेल, अब मैं स्मेल में आऊंगा क्योंकि मैं सूंघ रहा हूं, मैंने जैसे ही उसको लिया, अब वो डिटेक्ट करके उस ऑलिफैक्टरी रिस्पॉन्स की तरफ ले गया। वो नर्व ने वो इंफॉर्मेशन समझी कि ये तो इंफॉर्मेशन स्मेल की है, स्मेल किसका काम है? ऑलफैक्टरी का। वो नर्व ने क्वालिटेटिव लेवल पे ऑलफैक्टरी के पास वो इंफॉर्मेशन भेज दी। दैट इज, दिस इज नाउ द सेंस स्केल। सेंस स्केल खत्म हो गया, चौथे लेवल पे आप आ गए। चौथे लेवल पे जब आए तो मेंटल डिकोडिंग लेवल है। नाउ वो इंफॉर्मेशन आ गई तो हमारा माइंड सोच रहा है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस इंफॉर्मेशन मेमोरी के पास जाता है हमारा माइंड, और बोलता है कि ये जो स्मेल आई है, ये कौन सी स्मेल है, इसको मैं किससे रिलेट करूं, क्या इन्फ्लुएंस लूं? क्या मेरे को बचपन में ऐसा कि मैंने रोज का फ्लावर सूंघा था उसके जैसा है, या एक लेवेंडर है, या चमेली का फ्लावर है, व्हाट इट इज? हाउ शुड आई इंटरफेयर अंडरस्टैंड इट? mental decoding level started at objective and subjective level. Now subjective is there because mind has started understanding कि हो क्या रहा है, ये कोई स्मेल है। अब मैं रेफरेंसेस लेता हूँ, उसके बाद जैसे रेफरेंस मिला, पांचवे लेवल पे वो सब्जेक्टिव लेवल पे आ गया, और वहां उसको मीनिंग मालूम पड़ा कि ये जो स्मेल है, ये भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं की स्मेल है, और ये मैं इसलिए सूंघ रहा हूँ क्योंकि भक्तांबर की साउंड भी मेरे अंदर जा रही है और मैंने टच भी किया है। अब ये मीनिंग उसका डिराइव होना शुरू हुआ उस सब्जेक्टिव लेवल पे, और जैसे ही पांचवे लेवल पे माइंड ने समझ लिया कि ये भक्तांबर की अनंत ऊर्जाओं की स्मेल है, वो उसको इनर रियलिटी लेवल पे ले आता है, वो आपके बायो एनर्जीज में ले जाता है, और योर बायो एनर्जीज नाउ स्टार्ट एब्सॉर्बिंग इट। वो समझने लगती है कि यस, नाउ आई गॉट समथिंग, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, मेरे पास अनंत ऊर्जा के कार्ड भी है, अब स्मेल भी आ गई, टच भी कर रहा हूं मैं, नाउ आई एम गोइंग टू गेट द ब्लिस व्हिच आई एम लुकिंग एट। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरे डिजीज, मेरे दुख खत्म हो जाएंगे।
और वो 7वें लेवल पे मैनिफेस्टेशन कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है शरीर की सब इंद्रियों को कि अब हमारा चित्त, हमारा माइंड परसीव कर चुका है कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ले लो और अपने दुख को दूर करो, और अवेयरनेस और चेतना में अवेयरनेस आ जाती है। ये है एब्सोल्यूट रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। और ये परसीव्ड रियलिटी के साथ भी चल रहा है, और परसीव्ड रियलिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो नीचे मैंने एरो से बताया है। बट वी व्हेन वी यूज दिस भक्तामर आनंद ऊर्जा कार्ड्स एंड स्मेल, वी आर अल्टीमेटली टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी, एंड दैट इज वेयर आर सब्जेक्ट, हमारा हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे जाने का है कि परसेप्शन को समझें, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे आए, और सब्जेक्टिव से आने के बाद उसको प्रोजेक्ट कर दें, और हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को बता दें कि यही एक अमेजिंग सिद्धांत है, यही एक मिरेकल है, मैजिक है, जिसकी हमें तलाश थी। And that is what the sense of perception is. And when we talked about mind, we also went into next level of understanding delta, theta, alpha, beta, and gamma. Now these are different stages of mind. There are mental states. There are different waves. इस पे मैं जाना नहीं जाऊंगा, बट ईसीसी में जब हमने ईसीजी से हमने ये स्टडी करने की कोशिश की, तो ये पाया कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट इज डेल्टा, drowsiness is theta, cognitive is alpha, alertness is beta, and memory, which we absorb, conscious, subconscious, spiritual is gamma, and gamma is where we are going. With respect to Bhaktambar Anand Urja, we are crossing all the level and we are trying to reach the gamma state. And gamma state is the state of expanded consciousness, spiritual emergence, and hypnotic state, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट मति। जैनिज्म में अगर हमें विशिष्ट मति ज्ञान लेना है तो वी हैव टू इग्नाइट द गामा स्टेट, और ये गामा स्टेट जब इग्नाइट होगा, जब अनंत ऊर्जाओं के कार्ड और स्मेल और वो दिशा में बैठ के वो वाइब्रेशन को आप सुनेंगे, चित्त के अंदर लेंगे, जानेंगे, और वो भक्ति में लीन हो जाएंगे। ओके, सो सूत्रों के साथ अल्फा स्टेट, गामा स्टेट का हमने डिस्क्रिप्शन किया। ये डिटेल्स आपको बाद में एक मैं किताब का अटैचमेंट बना रहा हूँ, उस बुक में लिख के आपको दूंगा। और हमारे जो भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाओं के जो ऑनलाइन कोर्स में बेसिक और एडवांस कोर्स में है, उनको इंडिविजुअली बताऊंगा भी मैं। ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप जरूर जुड़िए हमसे और डिटेल पाइए कि कौन से सूत्र का कौन सा ब्रेन फंक्शन, ईसीजी वेव चेंज कैसे होता है, वो ऑयल कौन सा है। एसेंशियल ऑयल की बात अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं दिखाने वाला हूँ, बट दैट्स अ मिस्ट्री, दैट्स अ मैजिक which I am trying to take you to, but this is what we are trying to do. हम यही कर रहे हैं, हर लेवल पे जाके माइंड को, चित्त को, बुद्धि को, क्योंकि जब आपका शरीर कोई इंफॉर्मेशन लेता है तो सबसे पहले मन को विचलित करता है। मन के बाद वो इंफॉर्मेशन जब आप थोड़े से सेंसिबल हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो वो चित्त को अफेक्ट करता है। चित्त को जब अफेक्ट कर देता है तब आपको वो समझ आती है, तो बुद्धि पे जाते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ परसेप्शन है। और बुद्धि के बाद वो जाता है आपकी आत्मा के लेवल, विच इज द गामा स्टेट, विच इज द स्पिरिचुअलिटी निर्वाणा स्टेट। एनीवेज, सो ये सब हम माइंड की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने प्लैनेट्स की बात की, माइथोलॉजीज की बात की, ये भी समझने की कोशिश किया कि कौन सा ग्रह, कौन सी एनर्जी, कौन से वास्तु के दोष आपको तकलीफ देते हैं, और कौन सा एसेंशियल ऑयल उस दोष से आपको दूर करेगा, ये हमने जानने की कोशिश की। और इस जानने की कोशिश में ये हमने पाया इन अ नटशेल। ये स्लाइड आप अगर समझ लें तो आपने सब कुछ समझ लिया। भक्तांबर सूत्र क्या है? इन्फिनिटी एनर्जी। इन्फिनिटी एनर्जी क्या है? यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक पैटर्न है। यूनिवर्स में साउंड, ज्योमेट्री और फ्रेग्रेंस है, पंचभूत हैं, महाभूत हैं। ये महाभूत में तीसरा जो महाभूत हमने लिया गंध का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड इज मंत्रा, ज्योमेट्री इज यंत्रा, एंड स्मेल इज गंधा। ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे चित्त की बायो एनर्जी अलाइन हो जाती है, विच इज कॉल्ड योर एनर्जी बॉडी, योर ईथरिक बॉडी, योर कोर, अंदर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति, इनर बॉडी, चेतना को हम मंत्र, यंत्र और गंध से प्रफुल्लित कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। सो बायो एनर्जीज आर अल्टीमेटली व्हाट? मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये तीन एट्रीब्यूट, साउंड, ज्योमेट्री और फ्रेग्रेंस को कॉन्शियस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अगर हम जोड़ते हैं, इस ब्रह्मांडिक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद कॉन्शियस यूनिवर्सल एनर्जी, वी आर क्रिएटिंग अ तंत्र। And what is the tantra? Tantra is when you are holding the card in your hand, when you are listening to the sound, when you are inhaling the fragrance, there is a specific energy transmission happening inside the body, which is magnetic and electrical, and which is tantra, which is creating a
movement of energy circuit, because your hands are creating a circuit, your smell is creating a circuit, because we have two noses, we create a circuit. For circuit you require two things, like हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, वैसे ही कार्ड जब हाथ में आता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, और गंध लेते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, साउंड सुनते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, और ये सब तीनों एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर जाती है, एक ब्रह्मांडिक विस्फोट होता है, which is called tantra, and we need to work on this tantra, and if you can ignite this tantra you will come into the center, और भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं का आपको प्रभाव, आपको इफेक्ट आना शुरू होगा, and that is what I am trying to tell you. Okay, so these are the energy system. 15 मिनट बिफोर स्टार्टिंग योर भक्ति और ध्यान, जब आप कार्ड को हाथ में रखते हैं 15 मिनट पहले उस अनंत ऊर्जा के बक्से, ये हमने आपके लिए एक अद्भुत बक्सा बनाया है, इस बक्से में 48, 24 और 24 के दो बक्से हैं, और इसमें आपको हर सूत्र का एक स्पेसिफिक, ये नंबर 1 है जो आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं, इसकी स्मेल, अब मैं आपको यहाँ से ऑनलाइन स्मेल नहीं करा सकता, अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो जरूर कराऊंगा, बट ये स्मेल इस नंबर 1 कार्ड के साथ, ये नंबर 1 कार्ड है, इस नंबर 1 कार्ड के साथ अगर ये स्मेल को आपने अंदर दिया और उसको 15 मिनट पहले भक्ति के, जब आपको ये कार्ड हाथ में लेके सुनना है रखा, तो आप ये पाएंगे कि वो जो फ्रेग्रेंस कमरे में पैदा हो गई, वो आपके चित्त के थ्रू आपके अंदर जाती है, और आप अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, एंड व्हेन यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट विद दिस स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल of Bhaktambar Anant Urja, what you do is you start vibrating with the 48 infinity energy, and that is your solution. Not only your solution, you improve the vastu, you improve the environment, you improve your surroundings. तो आपके घर में उस दिशा में उस कार्ड को हाथ में लेके बैठे, उस अनंत ऊर्जाओं की इन्फिनिटी सिस्टम को अपने हाथ में लें, सूंघे, इनहेल करें, और आंख बंद करके सिर्फ ध्यान करें। 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका कार्ड का सिस्टम निकला है, उससे आप पता करेंगे कि ये एक बहुत अद्भुत सी चीज हो गई, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस प्रोसेस में हमने एक इम्प्रोवाइजेशन किया था, जो कि बाकी लोग समझ पाएंगे। ये प्रोसेस में हमने टेट्रासाइट्स की बात की थी, क्योंकि ये टेट्रासाइट्स और ये ट्री ऑफ लाइफ से हम कार्ड निकालते हैं, प्रोसेस सेम है। इसके लिए हमने एक छोटा सा नया किट बनाया है आप लोगों के लिए, और ये किट में आपको S3 गोल्ड लेकर एंटीना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पेंडुलम से काम कर सकते हैं। सॉरी, इस पेंडुलम से आप काम कर सकते हैं, और ये पेंडुलम से आप अनंत ऊर्जाओं के कार्ड नंबर अपने दोस्तों के, अपने फैमिली मेंबर्स के, आप कौन से स्तोत्र की आपको ढूंढ करनी है, कौन सी स्तोत्र की खोज करनी है, इस टेट्रासाइट पे आप निकाल सकते हैं। एंड एज सून एज यू गेट दिस, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग, यू विल स्टार्ट टू नो दैट दिस स्तोत्र इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 48 में से 1 या 2 स्तोत्र ही आपको चाहिए, सब नहीं चाहिए, और 48 में से 1 या 2 ही बोतलें आपको चाहिए। ये पूरी किट हमने हमारे स्टूडेंट्स और लोगों के लिए बनाई है, और ये किट इस तरह के लकड़ी के बॉक्स में आती है, सीक्रेट ज्योमेट्री वाली बॉक्स में, और ये आपको इस तरह से मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ये बॉक्स अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं 48 कार्ड्स के साथ। ये 1 से 24 कार्ड हमने इधर रखे हैं, ये 1 से 24 कार्ड्स के साथ ये 24 बॉटल हैं, और दूसरे 24 से 48 कार्ड के साथ 24 से 48 बोतलें हैं। इसके साथ प्रोसेस सेम है, उसी एनर्जी सिस्टम से आपको काम करना है जो मैंने आपको बताया। अब आपके पास S3 गोल्ड लेकर एंटीना नहीं है, S3 गोल्ड लेकर एंटीना जिसके पास है वो इससे यूज कर सकता है, अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन यूज द पेंडुलम, एंड पेंडुलम से आप ये टेट्रासाइट और प्रोसेस निकाल के, ये हमारा YouTube वीडियो भी है 1 घंटे का, आप देख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको बताने की, आपको प्रोसेस में डालने की, और आप मेरे साथ इस जानने की प्रोसेस में जुड़े हैं। आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव tried to be part of me in exploring this amazing system of 48 infinity energy। मैं एक साधक हूं, मैं खोज में निकला हूं, और ये खोज बड़ी दूर तक जाने वाली है। 48 infinity introduces an elementary system to enhance the state of sense and give you something amazing. So it completes, now the smell completes the collaboration of Panch Mahabhut। 5 महाभूत अब 48 स्तोत्रों की अनंत ऊर्जा में आ चुके हैं। ये एक बड़ा सौभाग्य का प्रोसेस है, इससे हम सब जुड़े
और द्रव्य काल और भाव क्षेत्र से बाहर निकल के इस प्रोसेस के अंदर जाके इस इमोशन को एनहांस करें और अल्टर करके ये देखें कि हमारी प्रॉब्लम्स 48 अनंत ऊर्जा किस तरह से सॉल्व करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैंने समय से 4 मिनट पहले खत्म किया। आई वुड लाइक नाउ टू इंट्रोड्यूस Amalia. Amalia is a wonderful friend. She has joined us from Singapore. She is going to give some examples and some understanding of what I have, if I have made you understood. Amalia, try to utilize what I have said and add on. We are waiting to listen to you. Over to you, Amalia. Brother Mayank, I tell you, it's so heart-opening to hear you speak. You know, you speak all my favorite things, especially favorite. And I will just my aromatizer here. I have, if I may show you, I have Sandat or Ilang Alang, and I don't think I can. Maybe I can bring it over. If you can see it, yes. Here, can you see? Yes, wonderful. And this is so common. I have it all the time. And also I have, let me put it nicely. And also I have this spray with a cobalt blue color and with frankincense in it. And of course I have my flowers. And yes, Amalia, we know that you have done amazing work in. So no, I will. No, it is actually beautiful that you to see you tying in with the 48, the number, which is a very powerful number in Chinese cosmology as well, because it's 48, and of course it's the cumulative of the vortex, as you know, in the Fibonacci spiral, as well as in the vortex energy, as it doubles up and it expands the energy, and also how your research corresponds with my experience in creating the infinity quantum qigong, which you experienced when we were in Bali together. And so it's so beautiful because I'm also exploring the correspondences, and now you brought forth all the what I was looking for in Jainism. So I'm really excited and happy that we have to discuss a bit more, you know, in this work. And as you know that the those, maybe for the benefit of those who understand a little bit of the yin yang, you know, the Chinese cosmology, the black and the white aspects. And if you notice, there's a curve that goes in the middle, and then if they're stacked up, the curves actually join each other in the infinity, and then the figure 8, right, as it stacks up. And they're also not one-dimensional, they're many-dimensional aspects of it. And within each one, there's also another of the other, the dark and the light and the light and the dark. And they actually keep stacking up and create those weavings that you have as your part of your logo, which is also in mine. So it's that cosmology is held in the Chinese understanding of the beginning of the universe also, and the cymatics. Wonderful. So really links so beautifully with your research, Mayank, on the Jain aspect of it. So I thank you for that. I really enjoyed. Thank you very much. Makes my heart so. Thank you, Amalia. Amalia is from Singapore, and she is an amazing person. And you can't tell her age. I don't want to discuss about her age, but she is old enough, but young enough to make you sweat in Tai Chi, and you will see the way she moves her body and dances. So she is an amazing person who has been doing research since ages. Thank you very much. So let's open house. If you have any questions for Amalia, we can talk, or if you have any questions for me, you can on your camera so I can see your face, and you can ask one by one, please. Mayank bhai, can I have a question? Vijay Shah from Mumbai. Yes. Just tell me, Vijay Shah ji, how are you? Fine. Thank you very much for the nice presentation. We understand you are exploring just always something new and new only, and it's a good, very good for the humanity. I want to question, since we are in the 5 Indriya, right? So we are not going to use the Indriya number of a speech
So how about using Great Indriya also? So when we recite, you told us to hand in hold with the touch, and second is the smell, and third thing is with the eyes. But how about if you use the Indriya of a speech also? So then I think it's also very, very useful as I understand. So please give us your comments. Indriya of the speak is your, there is no speak for, there is no Indriya for the speak. There is no sense of the speak as such. We have touch, we have taste, we have hearing, we have, which is listening, and then we have eyesight. And then we smell. It's always part of all the five Indriya. पांचों इंद्रियों का Right, right. तत्व बोलना है. So we are not talking about बराबर है. hearing. Hearing is the sound. Sound is what Right, you right, right. Correct. hear the first. As soon as you were inside your mother's womb, you could hear, Hmm. and then you could touch, and then you could smell, then you could, hear the sound. So that's what we Okay. will discuss about this. It's a very good question and a very valid point. हम बात करेंगे. साध्वी जी कुछ Okay. Thank you. पूछना Thank you चाहती very हैं? much. Ji. Can I ask one question? Your session is very amazing. I have Thank you. heard first time this thing. I'm really impressed from this session. Uh, uh, but I want to have some PDF and content your content. Yes. Yes, Sadhvi ji, मैं आपसे contact करूंगा. I try to connect with you. I will get your number and email IDs if possible. If you write it on the chat, or we have your number with us. So, और आपके पास मेरा number और details है. Talk to me anytime. क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? हेलो, क्या मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ, साधवी जी का प्रश्न खत्म हुआ? नो सर. सर एक complete. चीज और थी. सर वन थिंग और थी कि मतलब हमें ये कंटेंट हम पूरा चाहते हैं. मतलब अगर आप हमें ये PDF फॉर्म में दे दें और इसी के साथ साथ हमें मतलब ये सब इसका पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सी सेंसेस का कब यूज करना है, और जो आपने ये इसेंशियल ऑयल्स वगैरह के बारे में भक्तामर के साथ कनेक्ट किया था, तो ये वास्तु के साथ भी कनेक्शन है इसका? यस, इसका वास्तु के साथ कनेक्शन है और एनवायरनमेंट के साथ भी है. इस पे हमने रिसर्च करी है. हम शुद्ध भवन में जुड़ा, मैं शुद्ध भवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ. श्रुतदीप फाउंडेशन, वैराग्यवती माता के पास आपको ये और डिटेल मिलेगी. बट हमारा 48infinity.com करके एक वेबसाइट है. उस 48infinity.com पे जाके आप कांटेक्ट लेके हमें इंफॉर्मेशन देंगी तो मैं आपको जरूर चीजें प्रोवाइड करूंगा और आपसे सीखने की कोशिश करूंगा. धन्यवाद जी. कश्मीरा जी, बोलिए. ओके. हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने भक्तामर के 48 काव्यों को स्मेल के साथ कोरिलेट किया है और जो भी आपने इसमें खोज की वो तो बहुत अच्छा है, पर मैं ये जानना चाह रही थी कि भक्तामर जी और अशुद्धि, भक्तामर और अशुद्धि, इसका कैसा क्या कोरिलेशन हो सकता है? भक्तामर जी और अशुद्धि पे मैंने काम नहीं किया है, और हमारे टीचर से बात करनी पड़ेगी. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल. बाकी लोग अपना साउंड बंद करेंगे. साध्वी जी, आप साउंड बंद करेंगी प्लीज? यस. हाँ, ओके. तो कश्मीरा जी, ये अशुद्धि का मतलब क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा. अशुद्धि मन की है, तन की है कि विचारों की है? मन की अशुद्धि और विचारों की अशुद्धि तो मन नहीं कर सकते, लेकिन तन की अशुद्धि तो आप देखते हैं कि यू सी यू आर नॉट राइटली एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि आप शरीर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बाहरी जो अशुद्धि है, तन की अशुद्धि भी और बाहरी वातावरण एनवायरनमेंट की भी जो पॉल्यूशन वगैरह है, उन सब चीजों की भी. ठीक है, ये दोनों को भक्ता मैं समझ गया बात. मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड. हाँ, अंडरस्टूड. सी, जब भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जा में जब आप साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं और स्मेल अंदर लेते हैं तो आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं. यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हेन यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट यू स्टार्ट रेडिएटिंग पॉजिटिविटी, एंड व्हेन यू आर रेडिएटिंग पॉजिटिविटी दैट्स द टाइम यू आर करेक्टिंग द एनवायरनमेंट. अशुद्धि जो एनवायरनमेंट की है, impurity of the environment can be taken care by when you yourself become pure. So you are one of the impurities.
अपनी इम्प्योरिटीज को Okay. ठीक करें खुद ही। और क्योंकि हम सब मिलके इम्प्योर कर रहे हैं पर्यावरण को, हमारे सोच, हमारी समझ, हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारा एटीट्यूड इम्प्योर है और उससे बाहरी एनवायरनमेंट इम्प्योर होता है। तो वी नीड टू लुक इनसाइड, अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, प्योर आवर चित्त, मन और इंटरनल बॉडी, एंड देन क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट आउटसाइड। तो भक्तांबर स्तोत्र का यही सॉल्यूशन है। आप ध्यान से काम सुने और स्मेल करें और उस एनवायरनमेंट को देखें, आप क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, आपके बाद लोग सुनने लगेंगे, लोग अपने आप समझने लगेंगे। ओके, अच्छा अच्छा। धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बड़े दिनों में मिल देख के। कश्मीरा जी, आप ठीक हैं? इंदौर में सब ठीक है? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप हम सब बात ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं आगे। और किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं? Anybody wants to say? There are some questions on the chat box, but I can't access the chat box. Roshali, can you please help me in this? मयंक भाई, हाँ, इनकी कॉस्ट क्या है, एसेंशियल ऑयल की कॉस्ट? ये सब रोशाली मैडम आपको बताएंगी, कॉस्ट की बात मैडम अच्छा, बताएंगी थोड़ी देर में। आप ठीक है, पर्सनली ठीक है, फोन करिए ठीक है, 9822571102 में। हाँ हाँ और हाँ, आप ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। उमंग कैसे हो? भाई साहब, एक प्रश्न और कर सकती हूँ? उमंग जी एक बार बात करना चाहते हैं कश्मीरा, पहले उनकी बात सुने। ठीक ठीक है। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा हूँ अपने वास्तु में भी और हीलिंग के लिए भी। वंडरफुल। और मैं सबको पहले ये बताना चाहता हूँ कि एसेंशियल ऑयल्स अमेजिंगली गुड काम करते हैं। द मोमेंट यू स्मेल, आप दूसरे एकदम में चले जाते हो, एकदम ट्रांस में चले जाते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी इसमें कि ये जो आपने एसेंशियल ऑयल्स बताए हैं, 12-13 एसेंशियल ऑयल्स जो 48 सूत्रा को वो करते हैं। ये 48 एसेंशियल ऑयल है, अलग अलग, टोटल 48 ऑयल है। नहीं, वो 48 ऑयल्स अलग हैं टोटल। They are compounding, they are combinations of 48 different essential oils. There are 12, 15, 17 ingredients which are mixed in different proportions. मतलब आप जो कहना चाहते हो जो ब्लेंडिंग है वो Yes. अलग अलग हो रखी है या 48 एसेंशियल ऑयल्स अलग हैं? नहीं 48 ब्लेंडिंग है। अच्छा, 48 ब्लेंडिंग। 48 ब्लेंड्स है, कंपाउंडिंग है, उसको हमने अलग अलग प्रोपोर्शन में डाल के वो पर्टिकुलर ब्रेन वेव को कनेक्ट करके समझा है कि विच ऑयल इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द इशू, एंड देन रिलेटेड इज भक्तांबर सूत्र। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम्स आपने ये कितने हमारी किताब में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स में से हमने उसको सिलेक्ट किया है। ये प्रॉब्लम का, ये सूत्र का ये इशू है। सर ये कितने ml की है जी? ये 10 ml की है। हाँ जी। और क्या नाम है सर, ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी लाइफ कितनी होगी सर? सॉरी, इसकी जो शेल्फ लाइफ है? देखिए ये अल्कोहल बेस्ड इसकी शेल्फ लाइफ है। इसको हमने एक बहुत स्पेसिफिक सिस्टम में बनाया, आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने ड्रॉपलेट दिया है और ये ड्रॉपलेट भी इसमें टाइटली फिट हो जाता है। तो बहुत अलग टाइप का हमने बॉटल लिया है जिसमें 0% वेस्टेज है, बिकॉज इट इज अल्कोहल बेस्ड। ये डिफ्यूजर के लिए यूज होता है, स्पिरिट बेस्ड है, तो ये उड़ जाता है। आप इसको अगर लॉक करके रखेंगे तो यू कैन यूज ऑल 10 ml ड्रॉप्स। टाइमलाइन मुझे मालूम नहीं है, अभी तक हमने इसका ज्यादा यूज नहीं किया, बट हमारे जो वरोमा ऑयल्स हैं वो सालों तक चलते हैं। आप इसको टाइट बंद करके रखिए, सालों तक रहेंगे। क्योंकि और ये बॉटल भी स्पेशल काइंड है, इट इज अ ब्राउन बॉटल व्हिच डजंट गेट अफेक्टेड बाय सनलाइट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ कश्मीरा जी, कुछ पूछना चाह रही थी आप? हाँ, एक्चुअली मैं ये बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई कि भक्तामर के जो शब्द हैं और उनका स्मेल से हम कैसे संबंध कर सकते हैं। वो क्या चीज स्मेल करती है उसमें? ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा कश्मीरा जी। इसमें मैंने अब समझाने की कोशिश की थी, आपने उसमें थोड़ा समझ नहीं पाएंगे बिकॉज मैंने इंग्लिश ज्यादा बोली है और वो टेक्स्ट इंग्लिश में है। वो हमने हर ऑयल की जो परिभाषा है, हर ऑयल की जो फ्रेग्रेंस है, सेंट है, वो सेंट हमारे जब नाक में जाती है तो एक
कंपन पैदा करती है। जैसे आप साउंड सुनते हैं तो कंपन पैदा होती है ना, जैसे ये ऑल्फैक्टरी में हाँ कंपन पैदा करती है। और वो कंपन जो पैदा करके हम सुनते हैं, जैसे अभी उमंग ने कहा कि आप इसको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप अलग लेवल पे चले जाते हैं, गोइंग टू ट्रांस। तो जिस तरह से आपको एक गुलाब का फूल सूंघ के अच्छा लगता है और एक बदबूदार चीज से आप दूर चले जाते हैं, बोलते हैं छी मुझे नहीं सूंघना है। हमारे शरीर में ये भावनाएं हैं, दिस इज भावना, दिस इज इमोशन। भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं, भाव के साथ, और ये द्रव्य है, एसेंशियल द्रव्य है। भाव आपके अंदर है, क्षेत्र आपका शरीर है, और वो राइट टाइम पे आप ऑयल लेंगी। भाव काल क्षेत्र द्रव्य आपके साथ मिले, यही जनिगम का सिद्धांत है। ओके, हर्षा मेहता कुछ पूछना चाहती है? Yes, sir. कश्मीरा जी आपका साउंड बंद कर दीजिए। No, sir. And presently we are very happy with that. Another thing is that when if we join the class, you will be teaching us all the sessions. Yes, we will be teaching you most of the things which I know. जितनी चीजें मुझे मालूम है मैं सब सिखाने की कोशिश करूंगा। आप जुड़िए हमसे, मैं चाहता हूँ people should learn this, take it forward, take this 48, 24, 24 boxes of essential oils and go ahead and talk to people. तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, और अदरवाइज वैशाली मैडम से बात करें, she will help you. Okay, thank you. Sir, I want to ask you something. Ankita. Yeah, I'm Neha. even I wanted to ask something. I think someone else is asking first. No, you ask first, which you, Pankita, you are speaking now. Okay, no, I just wanted to check out that though we are talking about the religious things, Jainism and all those things, whereas for the, to spread the effectiveness of a Bhaktamar, what we are proposing to use is some alcohol which is not at all allowed in Jainism. Sorry? So is this correct way to spread the positiveness? No, we are not trying to spread anything, we are trying to make people aware. See, ये science है, ये religion नहीं है, ये spiritual science है. This is not a religion. I don't understand the word religion, I understand spiritual science. Spirituality is what we are trying to research and expose. तो जो मैंने काम किया वो मैंने जो पढ़ाई की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप उसको लेना चाहें तो लें, उसको ना लेना चाहें तो ना लें. It is, we are just trying to make you understand. That is, so we are not trying to do anything against Jainism. First of all, there is nothing called against Jainism. Jainism is a life. I have told you कि हमारे तीर्थंकरों ने जो देखा वो हमें बताया. तो हम इसको कल्ट नहीं बनाए. We should not make it a religion or a metaphor to control or create a विधान or create a ritualistic system. सुबह ये उठ के करो, रात को ये करो, ये खाना मत खाओ, वो करना है, ये करना है. See, all these are all hypocrisy, because the life 1000 years back is not the life here. Mahavir Swami correct would have been here this time. आज तीर्थंकर होते तो वो वैसे नहीं होते, अलग होते. Correct, I agree. Understanding has to be recalled, following their path of understanding, following their knowledge. ज्ञान को सुनिए, रिचुअल पे मत जाइए, डरिए मत. मैं सब लोग कहता हूँ, आचार्य श्री से लेके हमारे जितने भी साहेब जी सबको कहता हूँ, रिचुअलिस्टिक बंधनों में मत बांधे. जैनिज्म खत्म हो जाएगा. आप जितना लोगों को डराएंगे, वो साइंस के लोग डर डर के पीछे हटेंगे कि जैनिज्म में तो महाराज साहब के पास जाओ तो कोई बंधन दे देते हैं, ये मत खाओ, ये उपवास करो, इतने दिन. Nobody wants to go because they are afraid. So why we are creating fear psychosis? Let's make this science a science and let people learn and be happy. And this is the science of health, happiness, and harmony. Okay. Thank you. Thank you. Okay. हर्षा मेहता कुछ पूछना है? No, sir. Thank you. Okay. Welcome. So I wanted to ask you something. I'm Neha Sandaria. I have, sir, learned a course, basic level from you, of Bhaktambar Sutra, and but I have never used it because I was bit, I was not like कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. I was not confident about that. So I have never used anything. I just used 2 cards, which really made a difference in me. No doubt in that.
but I want to work on this. But how can I move? Like with both the things, like fragments also and with the pendulum also or antenna also. I am comfortable with the things, but I'm not confident on using it. Okay, Neha, what I'll tell you is, see, सबसे पहले to remove the fear inside you that you can do it or not do it. Everybody can do this because this is a part of us. It is part of our system, and I am there to help you. So what you should do is you should start gaining the confidence and start devoting yourself, start learning and call me. Ask me several questions. We have a lot of one-to-one sessions. Attend the sessions, attend all the classes. And if you are in near Pune, come over to the office and I'll explain you. Otherwise, can really help you to take this forward because अगर आपकी मन से इच्छा है, आपके तन और चित्त ने एक फोकस ला दिया है कि नहीं मुझे करना ही है तो आप कर पाएंगे. Don't worry, we are there to help you. Okay, so initiate it. वैशाली मैडम आप इनका डिटेल नोट कर लीजिए and then we can initiate it and इनको थोड़ा सा धर्मस्तिका का पावर देंगे हम ताकि इनको मूवमेंट आ जाए और इधर तो इनके पास है, इनके पास इच्छा है आगे बढ़ने की और let's try to make her strong in this. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I have two smaller questions, sir. Two small questions, sir. संजय शर्मा सर, एक तो आज का जो सेशन है ये जो हमको कोर्स करना है, कौन सा कोर्स का सर ये? सॉरी, जो आज का जो हम कोर्स आज जो सेशन आज का हुआ है इसमें हमको कौन सा कोर्स फॉलो करना है? देखिए 48 अनंत ऊर्जाओं का कोर्स है. www.vastuworldlearning.com में जाएंगे. हमारे यहाँ एक बेसिक कोर्स है, एक एडवांस कोर्स है. ये हम बेसिक में भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फ्रेग्रेंस और एडवांस में भी करने वाले हैं. ये दो कोर्सेज हैं. आप 48 अनंत ऊर्जाओं का एक तो 30 दिन की साधना है, बेसिक 30 दिन का है, 30 डेज के आपको वीडियोस भेजे जाएंगे, आपको वीडियोस देखने हैं और हमारे सेशन अटेंड करने हैं 1-to-1. 2 सेशन होते हैं उसमें. ठीक है, तो ये वृषाली मैडम आपको डिटेल दे देंगी. आप एक बार फोन करके उनसे बात करिए और जरूर ज्वाइन करिए, ये आप जरूर सीख पाएंगे. ठीक है सर. और दूसरा क्वेश्चन है सर कि हम अपना वास्तु प्रोफेशनल में इसको ये कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं? यस, प्रोफेशनलिज्म में आप कर सकते हैं. ये मैंने बॉक्स इसीलिए बनाए हैं. ये जो बॉक्स है इसमें बोतलें हैं. ये बोतलों में से आपको बोतलें अपने कस्टमर को दे देनी है. इस तरह से आप ये कार्ड देते हैं, कार्ड और ये कस्टमर को आप बॉटल दे देंगे. जैसे ही ये बॉटल कस्टमर के पास जाएगी आपका ये खाली हो जाएगा. यू कैन परचेज इंडिविजुअल फ्रॉम अस. फिर आपका बॉक्स पूरा कर लीजिए. आपके कार्ड खत्म हो गए, बाय द कार्ड्स फ्रॉम अस एंड वी विल रिप्लेस द कार्ड इंडिविजुअली आल्सो. यू डोंट नीड टू बाय द होल बॉक्स. ओके. यस सर, थैंक यू सर. इसको वास्तु के लिए ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में जब ये एसेंशियल ऑयल जैसे कि मैंने निकाला है अभी 21 नंबर का, ये 21 नंबर का एसेंशियल ऑयल जब डिफ्यूजर में डाल के आप एक पर्टिकुलर दिशा में उसको बर्न करेंगे तो पूरा पर्यावरण एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो साउंड वाइब्रेशन आप सुन रहे हैं. ठीक है, तो ये इसको डायग्नोस करने के लिए कस्टमर के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए पेंडुलम का यूज करना पड़ेगा. पेंडुलम या S3 गोल्ड लेकर एंटीना, ये दो चीजें हैं आपके सिस्टम से. या तो आप ये बड़ा वाला बॉक्स में या छोटा वाला बॉक्स है जिसमें पेंडुलम आता है. तो दिस इज नॉट टू एक्सपेंसिव. ये हमने कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है कि आपको ये बड़े बॉक्स की जरूरत ना पड़े तो आप ले पाए. ठीक है जी, ओके. Hello sir, your fees will be including all these instruments. Yes, advanced fees includes all these instruments. And what about the basic one? Basic one doesn't include, but we will help you getting it. So you need to first join the course, and then we will try to help you in getting it in a better rate. Okay, your online lectures will be at what time, sir? Sorry? Your online lectures will be at what time? No, online lectures we will send you on video. You have to look at them your own time. आप अपने समय में कभी भी उसको देखिए. They are videos of 3 hours. Basic videos. Every day I have given you one video of 6.5 to 7 minutes. Oh. आपको अपने फोन पे देख सकती हैं, आप कभी भी जहाँ भी बैठे हैं और आप लर्न करें. और हर 15 दिन में एक 1-to-1 सेशन होगा जैसा आज हो रहा है. उसमें आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब देखने के बाद.
Then if Okay. we are confused, if we are not satisfied, then we Then you can call. then we will make you convince your and we will make you learn it. हम बैठे हैं आपके लिए, चिंता मत करिए, आप सीख जाएंगी. Okay, sure, sir. Thanks a lot. Okay, take care. Take care. Rushali, are there questions on the chat box? Sir, no, there are no questions on the chat box. So people have said that the session was great and. हेलो. Okay, wonderful. हेलो Yes. सर, मैं पूछ सकती हूँ? Yes. कश्मीरा पूछो. मैं ये चाह रही थी कि भक्तामर स्तोत्र जी को उच्चारण करके मतलब किस समय हम उत्कृष्ट समय है इसको बोलने का? देखिए, आपके शरीर में जो भावनाएं, जो समय निकलेगा, वो पेंडुलम से या एनर्जी कार्ड से, सुबह शाम दोपहर का, हम क्वांटम फिजिक्स के थ्रू वो समय निकालेंगे. आपको समय नहीं मालूम. समय आपका क्षेत्र भाव और द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ है. क्षेत्र भाव द्रव्य आपके शरीर में है, समय काल बाद में निकलेगा. तो क्वांटम फिजिक्स से या पेंडुलम से, S3 गोल्ड एंटीना से या उससे हम आपका समय निकालेंगे और कौन सा कार्ड आपको किस समय सुनना है वो बताएंगे, कितनी देर तक सुनना है वो बताएंगे. So all these things are going to connect with you. सुनना नहीं, मुझे बोलना कब है ये पूछना है. आप बोलिए, सुनिए, आपके ऊपर है, बट वो समय क्वांटम फिजिक्स से ही निकलेगा. तो इसके लिए मुझे क्या वो बाल भेजना होगा आपके पास? या तो बाल भेजें या आप पेंडुलम लेके खुद करें, खुद का ध्यान निकालें. बट बाल भेज देंगे तो मैं निकाल के दे दूंगा. आप हेयर रूट से निकाल के भेजिएगा, सर के रूट से. अच्छा, ओके, थैंक यू. Okay. So I think we should call it a day. Amalia, thank you very much. I am so happy. Jai Jinendra. And I'm so grateful to see you here. Thank you very much, Amalia. Thanks everybody. Nitin ji, Kashmira ji.